Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors of the seniors and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है श्रीमती मेधा घोष। उनको खास बनाता है उनके स्वतंत्र विचार, बुद्धिमत्ता और 5 भाषाओं पर प्रभुत्व। बैंकिंग करियर के साथ साथ घर, संसार, बच्चे और रिश्ते मेधा जी ने बखूबी निभाए हैं। तो आइए सुनते हैं मेधा जी की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तेजसा और स्वागत करती हूं श्रीमती मेधा जोशी घोष इनका। नमस्कार मेधा जी। नमस्ते जी। मेधा जी जो हमारी आज की मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। क्यों, ये आप जानेंगे। लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। शी हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अ होल सर्कल और हमारी कोशिश ये है कि मेधा जी इसके बाद ज़िंदगी का और एक रूप बहुत अच्छी तरह से जिए एंड शी इज़ हैप्पी एवरी मोमेंट ऑफ हर लाइफ। सो थैंक यू मेधा जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। थैंक्स अ लॉट। सो मेधा जी शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। हम आपको जानना चाहेंगे और करीब से। Yes, I was born very much in Bombay and in one of the opera house hospitals where my parents used to stay. And my father was in Indian Navy as a chief personnel officer and my mummy was the principal of one of your Girgam schools. Before her marriage, she was sports champion of Baroda State in the time of Sayajirao Gaikwad. They got married in 1938 and then she came to Mumbai and then they settled in Mumbai. Another thing I would like to mention is that they had never any bad relations between them, and both the daughters, myself and my brother and my sister, all siblings used to say, how come your parents never quarrel with each other? So they said, that is not our, you also don't do all these things because our culture is different and you should always be good to each other. Another thing they always mentioned is that don't compare yourself with your brother or sister because intelligence is not a thing which everyone will have at the same time. One is having good nature, one is having good other things. But yes, you should get comparatively good marks in your education. That was the only thing they said. And they always told us, don't quarrel with each other. Try to find out good things in others. So in that time, we were brought up in such a way कि मम्मी डैडी का काम करना, इसमें कोई आप उपकार नहीं कर रहे हो. That is your duty, and when I am out of the house, it is you and your brother who has to do everything for your ailing mother. I love languages because of my choice system where I am still living. Lot of other people of different types were there, so I never allowed them to talk in their languages. I talked in their languages, and so I could manage many languages. And that helped me in becoming an official translator after I got voluntary retired from Bank of India after 32 years. वाओ। सो आपने कहा आपको 5 लैंग्वेजेस आती हैं, तो हमने 2 में तो सुना है आप इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलती है, आपकी हिंदी बहुत फ्लुएंट है, जोशी मतलब मराठी आती ही है। राइट, यू मैरिड टू बंगाली। મને ગુજરાતી આવડે છે and I know Bengali very well, reading, writing and speaking, everything. अमेजिंग अमेजिंग। बैंक ऑफ इंडिया में इसका मुझे इतना फायदा हुआ कि बीइंग असिस्टेंट मैनेजर थ्रू आउट,
so many people of different types used to come and visit me, and they used to get very happy when I talk to them in their own language. तो उनको बेचारों को ऐसा लगता था ये मैडम हमको कभी वापस नहीं भेजेगी, हमारा काम करके देगी. So they also liked me in that way. So these languages helped me in this way. Another thing is that another thing I always tell my children, never do differentiation between your seniors and the juniors. Always see that your substaff and your manager will be given the same respect. You know what to talk to anyone, but just because he happens to be a substaff, don't behave that way. And that I really like it. If they do it, I prefer it. Yes, that is it. अब हम जानना चाहेंगे आपसे आपका जोशी से घोष का सफर. हाँ, अभी मैं सच बोलूं तो मेधा जोशी कभी लव मैरिज करेगी ये सपने में किसी का भी नहीं था. मेरे तो था ही नहीं. और हुआ भी वैसा कि ही हैपन टू बी जूनियर टू मी इन बैंकिंग एक्सपीरियंस. ओहो. आई जॉइंड बिफोर हिम अबाउट 7-8 months. उसके बाद वो बैंक में जब आया तो वेरी फर्स्ट डे ही वाज asked to work under me, he being the new person. That is the first day experience. And I made him do some of my work. And that only day after the work was over, he just asked me, so Miss Joshi, how did you like my work? So I just told him one thing, Mr. Ghosh, काम तो अच्छा ही था. Your handwriting is exceptionally good, which I am yet to find a person with such handwriting. इतना मैंने बोला. और वो इसलिए बोला कि right from the beginning of my life, my daddy was the one who always told me this thing. Medha, keep it in mind that 99.5% a person with good handwriting is always good at heart. And that thing struck me. 5-6 महीने के बाद one fine day he just asked me once, so you are not married yet? हाँ, yes, fortunately or unfortunately enough, I am not yet married. तो उसने सिर्फ मेरे को एक ही इंडिकेशन दिया था, then I'll wait till you get married. I got the indication what he wanted to say. Just neglected him as such. उसके बाद उनको ये ऐसा लगा कि अभी मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए then he became friendly with my brother also, sort of the same age. तो घर आने लग गया. Then he became more friendly with him and he used to visit us quite often. उसके बाद he used to visit my friend, my sister also. तो वहां जाके he became quite close. और फिर उसके डैडी ने जो my dad father in law was the chief executive zonal manager of LIC in Nariman Point. तो उनका वो इकलौता बेटा, तो उनको ऐसा लगा कि अभी बेटा भी तो अभी 27-28 साल का हो रहा है, उसको पूछूं तो सही शादी करना है कि नहीं. तो जैसे उन्होंने विषय घर में निकाला तो उसकी जो छोटी 2 बहनें वो दोनों चालू थी, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया, बाबा इसके लिए लड़की मत ढूंढो, वो मेधा के घर जो रोज जा रहा है. तब मेरे को ये सब मालूम नहीं था. तो मेरे को एक दिन मेरे फादर इन लॉ का फोन आया और पूछा, आर यू इंटरेस्टेड इन माई सन? आई सेड इन व्हाट वे बाबूजी? नो, ही थिंक्स ही इज इंटरेस्टेड ऑन यू. Yes, you can say he's a good boy. So he said, okay. Then he immediately talked to my brother-in-law because he was the only elder person in my house. Both of them no चीज. तो naturally उनको ही पूछना था. तो मेरे को जन तो रोज आता है हमारे घर, इज इंटरेस्टेड. फिर मेरे को उसके सामने ही बुलाया, मेरा तेरे को इंटरेस्ट है क्या? तो यू कैन से द अदर वे, नॉट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट यस, नो कमिटमेंट्स येट फ्रॉम एनी साइड. बाबूजी ने इमीडिएटली बोला, वी आर गेटिंग मैरिड नाउ. तो मेरे ब्रदर इन लॉ करे, मेरा इश्यू दैट्स श्योर. अब मैंने बोला मेरे को शादी बिल्कुल सिंपलिसिटी से करनी है. तब हमारे बाबूजी, मेरे फादर इन लॉ इतना ही बोले, ही इज माय ओनली सन, तो कम से कम एक आध पंडित को थोड़ा टाइम तो बुलाओगे ना. वो मुझे ही पूछ रहे, तो मुझे बहुत खराब लगा सुन के. तो बाबूजी आपको इतनी इतनी ये है तो 15-20 मिनट को अपन बुला लेंगे, आपको जो एक आध विधि करवाना है करवा लो. खार में छोटा सा एक हॉल था, उधर हम लोग 5 बजे गए, 5:30 बजे एवरीथिंग वॉज ओवर एंड वी वेर बैक. Then my life started, and it, fortunately enough, my sister-in-law and my father-in-law, I didn't have mother-in-law right from the beginning. घर में जाके मुझे जरा भी उन्होंने फीलिंग भी नहीं दिया कि मैं तो इस ससुराल में आई हूँ या कुछ, ऐसे भी नहीं.
सिर्फ इतना ही बोला, सो नाउ एटलीस्ट यू लर्न बंगाली, नाउ यू हैव एंटर्ड माय हाउस. I said, even if you had not said this, I would have told you the same thing because I want to learn your language. एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरी बड़ी जो डॉटर है, शी वाज बोर्न आफ्टर अबाउट 1.5 year आफ्टर मैरिज. तो मैं खाना बनाती थी और ऑलवेज माय मॉर्निंग ब्रांच वाज देयर. सो नेचुरली सब्जी बनाओ, उसके उसके ईच में उसको जाना था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे हाथ खराब थे, तो उसको मेरे मिर्ची के हाथ कहीं ना कहीं लगे एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. तो मेरे को मेरे बाबूजी ने पूछा व्हाई शी इज क्राइंग. तो मैं बोली बाबू मेरे हाथ थोड़े मिर्ची के थे, उसको कहीं लगे होंगे. तो माय गॉड, ही गॉट सो एंग्री बिकॉज ही लव्ड हर मच मच मोर देन मी. हाँ. तो इसके बाद मिर्ची वाले हाथ लेके उसको कभी भी मत टच करना, इट इज आई हु विल डू इट फॉर हर. एंड फ्रॉम दैट डे मुझे अच्छा ही हुआ, बाबूजी सभी कर रहे हैं उसका काम, मुझे आई वाज वेरी हैप्पी. चलो कोई बात नहीं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सब कुछ किस तरह से बैलेंस किया. इसका मैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट जवाब ये दूंगी कि मेरा नसीब अच्छा था कि पति और फादर इन लॉ एंड ऑल द पीपल इन माय इन लॉज हाउस वेर एक्सेप्शनली गुड टू मी. सेकेंडली, मुझे घर में से बहुत जल्दी निकलना पड़ता था. सो नेचुरली आई हैड टू लीव ऑफिस बाय 8:30 बिकॉज द कैश विल नॉट ओपन बिफोर आई गो. उसके पहले मैं खाना बना के बच्चों को अपने अपने इसमें छोड़ के ऑफिस जाती थी. तब सारा काम फादर इन लॉ आराम से निपटा देते थे. बाकी का वो बच्ची घर में आने के बाद बिफोर वी पीपल कम, माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड एंटर, ही यूज्ड टू फिनिश हर खाना, उसका पढ़ाई, एवरीथिंग ही यूज्ड टू फिनिश. एंड हमेशा उसको बोलते थे मम्मी डैडी आएंगे ना, उनको तकलीफ मत देना, अभी तेरा सब काम हो गया है ना, तेरे तेरे काम रहेगा सिर्फ उनके साथ खेलना. So I used to like it. He is taking it so nicely and he never allowed us to teach her anything. One more thing I will mention here, that about 3 to 4 months before our marriage, Babuji means my father-in-law, he called me every Saturday to stay with them for Saturday and Sunday. तो मैं बोली बाबूजी अपने यहाँ कैसे कभी बुलाते नहीं है शादी के पहले लड़कियों को घर. तो बोले वो अपने यहाँ की बात तू छोड़ दे, यू आर माई ओनली डॉटर इन लॉ और मेरे घर में किचन देखने वाली तू अकेली रहेगी. यू शुड नो व्हाट इज वेयर एंड यू शुड टेल मी व्हाट इज मिसिंग इन माय किचन. तो तू सब देख के जो जो तेरे को खरीदना है अभी से खरीद ले, ताकि तू घर में आने के बाद तेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एंड रियली फॉर 4 months बिफोर मैरिज एवरी सैटरडे संडे आई यूज्ड टू गो टू देयर हाउस एंड मंडे मॉर्निंग बोथ हस्बैंड एंड माई सेल्फ यूज्ड टू कम फ्रॉम होम टू माई ऑफिस. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. एक्सीलेंट. ऐसी कहानियां हमने सुनी ही नहीं है. Both of us after marriage we got promoted to officer's post. Initially we were in clerical state to Indore as our first transfer. और वहाँ मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड लेडी स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने एक ही रिप्लाई दिया मेरे को, यू आर माई फ्यूचर पेशेंट, क्योंकि यू मे हैव प्रॉब्लम्स इन गेटिंग किड बिकॉज यू आर क्वाइट फैट. आई एम क्वाइट फैट अप टिल नाउ. और दैट सेम मंथ आई गॉट प्रेग्नेंट. तो डॉक्टर ने सर में हाथ लगा कि मुझे बोला था तुमने मेरा सब शिक्षण में पानी फेर दिया है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू टू कम एंड टेक सम ट्रीटमेंट फॉर मी फॉर द चाइल्ड एंड आई गॉट द चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर 9 months. So that was something. 9 months भी तकलीफ नहीं, 9 महीने ऑफिस में किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि दिस लेडी इज कैरिंग बिकॉज ऑफ माई फैटनेस. और जब मैंने प्रोसीडेड और मैटरनिटी लीव ऐसा लिखा तब मेरे सब स्टाफ मेंबर मेरे को पूछ रहे मैडम व्हाट इज इट, हु इज गोइंग ऑन पैटर्निटी लीव. तब हंसने लग गए. तो अच्छा मैं कार लेके जाती थी, कार ड्राइव करती थी, किसी को जरा भी मालूम नहीं पड़ा एंड तक. तो और थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. जब भी आपके ट्रांसफर्स हो रहे थे तो आपके फादर इन लॉ साथ में आते थे आपके? नेचुरली ये मेरे मन में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि बाबूजी कहाँ जाएंगे. बाबूजी विल ऑलवेज विथ मी. बट माय एल्डर डॉटर व्हेन शी वाज 6 year old, ये अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड. फिर मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि अभी मेरी बेटी का क्या करेंगे. बट एट द सेम टाइम एक मेरे को ऐसे मिले इंसान
कि जिन्होंने मेरे बाबूजी के अंडर में LIC में काम किया था, तो ही इमीडिएटली सेड बाबूजी नहीं है ना, सोनाली को हम देखेंगे। उनके यहाँ वो काफी घर जैसे रह गई थी, लकीली इनफ, एंड शी स्टेड फॉर 4 to 5 years till she became elder. तो मेरा वो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम छूट गया। ऑफ कोर्स वी फेल्ट द नीड कि बाबूजी शुड हैव बीन देयर, पर एट द सेम टाइम अच्छे से गए इसलिए अच्छा लगा कि उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, ये तो सही। और आगे चलते हैं. हाउ डिड लाइफ देन मूव ऑन? Life moved on quite well, nothing happened, and to tell you frankly, my husband was very, very, very healthy right from the day I saw him. मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, till the age of 40 he never knew what is his blood group was. बेटी के टाइम उनको जब ब्लड देने का जरूरत पड़ा, तब मैंने बोला टेल मी योर ब्लड, तो डॉक्टर ने उनको उसको डांटा कि तुमको कभी भी नहीं लगा ब्लड ग्रुप देखने, नहीं लगा सर, बोलो कि नहीं तरीका है तो देखो, मैं अभी देखता हूँ। When we were posted in Khandwa after Indore, suddenly one night heavy heart attack. मैंने डॉक्टर ने जब बोला, पूछा तो बोला इसका लाइफ अभी सीडेंटरी ही रहना है, उसको कोई भी हार्ट ट्रीटमेंट होने लायक हार्ट बचा नहीं है। तो भी वो उसके बाद when we took voluntary retirement, he joined one of the bank in Dombivli, just imagine. And 3 मंजिल चढ़ के वो जाता था वो ब्रांच में। तो मैं बोलती अरे तेरी तबीयत ठीक, अरे वो जाना है तभी जाऊंगा, डोंट वरी, तुमने तो वॉलंटरी लिया है, मैं वॉलंटरी नहीं ले सकता, मेरे को जाना है। और तभी भी अच्छे से जाता था। ऑल हिज स्टाफ मेंबर्स लव्ड हिम लाइक, वो सब नहीं आएंगे तो अच्छा दिन नहीं जाता, क्या उसमें अच्छा गया मुझे नहीं मालूम, पर दैट वाज द थिंग। और उसके बाद वो भी हमने अच्छे से चला लिया, पर बाद में सडनली गॉट दैट बकल मिकोसा नाम है वो कैंसर का, उनको हो गया। तो फिर तो देन माय बैड डे स्टार्टेड। तो भी मुझे ऐसा लगता था कि इतना हंसी खुशी वाला आदमी है, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसा सोए ही रहना वगैरह। और जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और व्हेन डॉक्टर गिव मी आइडिया कि मेधा इट्स अ मैटर ऑफ डेज, तुम बोलो तो मैं मैक्सिमम ICU में रखे, उसको कोशिश तो कर ही रहा हूँ और कर ही। तो मैंने डॉक्टर को तभी बीइंग द वाइफ ऑल्सो मैंने उनको बोला था कि डॉक्टर साहब इफ इट इज अ मैटर ऑफ सम डेज, तो यू डू वॉट एवर यू लाइक, but don't ask him to stay alive when it is not possible. सिर्फ मेरे थोड़े दिन अलाइव रखो जब तक मेरी छोटी वाली बेटी की शादी नहीं होती है, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो चला जाएगा, उसके मैं भी चली जाऊंगी, तो वो बच्ची बेचारी बिना माँ बाप की शादी कैसे, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम दोनों को माँ बाप नहीं थे, तो मुझे मालूम है कि क्या होता है माँ बाप नहीं होने से। सो दैट उसके बाद मेरा भी इस जीवन का सब खत्म हो जाएगा, देन यू टेक मी अवे। भगवान ने मेरी ज्यादा ही सुनी, और अभी 15वां साल चालू है और मैं स्टिल अलाइव टू टॉक टू यू। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम आपसे जुड़े हैं, हमारी मुलाकात हुई, हम आपको जानने लगे, और आज एक ऐसा दिन आया है कि हम इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन में हैं और आपका पॉडकास्ट हो रहा है। आई कैन ओनली से कि आपने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। हाउ मच आई एम डिजर्विंग ओनली यू पीपल नो, पर हाँ आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रीटमेंट एंड विद ऑल ऑफ यू, all three of you with whom I talk very, and Madan ji, Bharti, as well as Uday ji. जैसा मैं एक बात बोलूं, 75 साल में कभी एक सेकंड भी मैंने सोचा था नहीं था कि any person will approach me with that what is it called podcast. कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, और मैं चाहती भी नहीं थी, इसलिए कि I don't deserve it. Uday ji, he is also sponsoring me, I heard. तो नेचुरली आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि इतने लोग मुझे जानने लग गए, जब मैं हमेशा आप लोगों को सिर्फ सोई हुई दिखती हूँ विद ओनली दिस डगला ऑन माय हैंड, नथिंग एल्स। तो और क्या, मैं और कुछ नहीं कर सकती इससे ज्यादा। मैंने ये ज्वाइन इसलिए किया था कि मेरा ये जो सॉलिटरी लाइफ है, मेरा जो ये डिप्रेसिंग लाइफ है, दैट शुड एंड समवेयर, एंड आई शुड थिंक अबाउट समथिंग बेटर इन लाइफ। और जो मैं इतना साल मिस कर रही थी आफ्टर माय रिजाइन बैंकिंग करियर, आई थॉट आई शुड कम विद सम people like you who will really have some good time with me. And yes, I got it, and I'm going to remain with this
प्लेटफॉर्म वेरी ऑफन, पर ये कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे जैसे लेडी को कभी 4 लाइन गाने का भी मौका इधर मिलेगा, which first time in my life I have done it, really बोलती हूँ। क्योंकि मेरी आवाज कैसी है मैं भी जानती हूँ। आपकी बातों से मैं 2-3 चीज़ें उठाना चाहूँगी। सबसे पहली बात, द स्माइलिंग सोल्स ये मंच ही ऐसा है जहाँ पे सीनियर्स और हम एक फैमिली बन के रहते हैं, और एक फैमिली मेंबर की तरह आपके दोस्तों ने, फिर चाहे मदन जी हो, फिर चाहे भारती जी हो, उन्होंने अपना समय आपको दिया, आपसे रोज़ बात करते हैं, या फिर उदय जी हो जिन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर किया है। हम भी सबके शुक्रगुजार हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो आपने कहा, विच इज़ सॉलिटरी लाइफ, डिप्रेसिंग लाइफ, और तीसरी बात जो आपने कही, आई विश्ड दैट एंडेड सम टाइम। और ये आपसे हम आज वादा लेना चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी से इस घड़ी के बाद कुछ शब्द हमेशा के लिए बाहर जाएंगे। ओके? वादा तो बड़ा कठिन है, पर मैं देने की मैक्सिमम कोशिश करूंगी। एंड अनदर कपल ऑफ मंथ्स आई विल ओनली टेल यू इन फोन कि यस आई हैव बिकम 99% happy. Yes. And okay, this much I will guarantee you because I have started feeling the difference in me now. इतना तो है, जो मेरे को नहीं लगता था, मैंने जो सुबह उठने के बाद ऐसा लगता था कि क्यों सुबह हुई, तो वो अभी नहीं आता। ठीक है, सुबह हुई तो शाम को कुछ अच्छा प्रोग्राम तो दिखने मिलेगा। Yes. ये सब और कुछ चीज़ें हम आपके साथ करना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपकी स्माइलिंग सोल्स का सफ़र कैसा रहा है? वही मैं बोलना आपको चाहती थी कि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहाँ से मेरी पहचान हुई, पर द मिनट आई गॉट एंड टू नो ऑल ऑफ यू, मेरे मन में एक विचार तो बहुत अच्छा आया कि ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल द पीपल हु आर विथ मी एंड माय एंकर्स, व्हाटएवर यू कॉल यू पीपल, आई डोंट नो योरसेल्फ, exceptionally good, and I felt कि I should continue here. Even my people who are with me, all are educated, much more educated, और सुन के ही अच्छा लगता है कि यस, इनको सुनना जरूरी है, और मैं सुनती हूँ। हम अभी कमिटमेंट की बात कर रहे थे, वो आखिरी पॉइंट होगा आज के पॉडकास्ट का। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका यंगर जेनरेशन के लिए मैसेज क्या है? देखिए, मैं एक जरूर बोलूंगी, ऑलवेज टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू कंपेयर वन विद द अदर, और कभी आप भी अपने 2 बच्चों में एक दूसरे से कंपेयर कभी भी मत करना। लेट देम फॉलो व्हाटएवर दे वांट इन लाइफ। ओनली थिंग इज दैट ऑलवेज बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि मम्मी डैडी कभी झगड़ते नहीं, ऐसा क्यों है? दिस शुड बी द स्पिरिट इन देम आल्सो। या दैट वाज एक्सेप्शनल। मेधा जी, जाने से पहले आपसे सच में एक कमिटमेंट चाहिए। एक नहीं, एक्चुअली कई सारे कमिटमेंट्स चाहिए। ये कमिटमेंट आप मुझे नहीं दे रही हैं, आप पूरे स्माइलिंग सोल्स परिवार को दे रही हैं, और आपके खास दोस्तों को दे रही है। और इस कमिटमेंट में आप इंस्पायर करेंगी बहुत सारे सीनियर्स को। यस, हम जानते हैं, और सारे श्रोता और दर्शक भी जानेंगे मैं जब ये बात कहूँगी कि मेधा जी को मोबिलिटी इश्यूज़ हैं। वो ज़्यादातर सेशंस लेटे लेटे देखती है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम अभी तक हमें इसमें थी कि मेधा जी आप जो कहती है, आई एम अगली, आई कैन नॉट सिंग, देयर इज़ नथिंग गुड इन मी, ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आज से टोटली आउट होने चाहिए। एक बार भी नहीं, कितना भी दर्द हो, कितना भी दिन खराब हो, ये स्टेटमेंट्स कभी आने नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर या आपकी स्माइल पर कई सारे स्माइल्स निर्भर है। एग्रीड। और एंड आई एम श्योर यू विल अग्री कि हम अगर किसी और को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं देने चाहिए। करेक्ट? ये शायद आपके ही वर्ड्स हैं।
क्योंकि हम सब आपके साथ नहीं रहते, इसीलिए रोज आपके साथ बैठना मुमकिन नहीं है। पर आपको देखकर स्क्रीन पर सबको वाकई में दुख होता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो आपकी स्माइल से सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और मैं सच में ये कह रही हूँ। इसीलिए हमारे टीम मेंबर्स भी इस पॉडकास्ट पर ज्वाइन हुए, खास आपकी बातें सुनने के लिए। अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में ज्वाइन नहीं हुए थे, क्योंकि उन सबको आपको देखना था एक अलग अंदाज में। तो ये जो आपका अलग फॉर्म है आज, वो आज से हमेशा के लिए बरकरार होना चाहिए। I hope they will be satisfied with what they thought about me. Absolutely, everybody is going to be very, very thrilled. Yeah. तो 2-3 चीज़ें आपको करनी है, एंड सी इफ यू कैन मेक अस हैप्पी। हम चाहते हैं कि आप जल्द कोई भी सेशन ले। आप लिंग्विस्ट हैं, आप इतने सारे लैंग्वेजेस जानती हैं, आप एक आध कॉन्वर्सेशन का सेशन आप एंकर कर सकते हो। ओके, अगर आप बेड से उठकर ऐसे कुर्सी में आकर बैठ सकते हो, तो इस तरह से रोज कम से कम दिन का 1 घंटा इस तरह से बैठकर आप सेशन अटेंड करिए, ताकि वी विल ऑल फील सुपर 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 हैप्पी। Yeah. Okay. That thing I do. हाँ, और आप ठीक है, पर एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा बैठने की कोशिश जरूर करूंगी जी। एंड यू कैन नॉट बिलीव हाउ हैप्पी दे विल बी। तो इसका जब हम प्रीमियर लॉन्च करेंगे, तब भी आप सबके अभिप्राय सुनेंगे, देखेंगे कितने सब खुश हैं। और आपको सेशंस एंकर करने हैं, वो चाहे 15 दिन में एक हो या 1 महीने में एक हो, पर एक कॉन्वर्सेशन का सेशन। और आपके मन में और भी कोई आइडियाज़ हैं तो आप वो ले आ सकती हैं, बट हमारी मांग ये है कि आप सेशन एंकर करें एज अ सुपर लिंग्विस्ट। ठीक है, तो चलिए आज का पॉडकास्ट इसी बात पर ख़त्म करते हैं। हम फिर से एक बार आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस मंच पर आकर हमारे पॉडकास्ट सेलिब्रिटी बनने के लिए रजामंदी दी। एंड वी हैड अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर एंड होपिंग टू सी मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ यू। थैंक you very much. Thanks a lot. We are really thankful to you for giving me this opportunity at the fag end of my life. Not bad. We want to see you for many more years with this smile. And not only us, मेधा जी, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सब आपको देखकर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। उन सब के लिए I hope it's a surprise. So let them be surprised with this new avatar of yours. ठीक है? Yeah. Thank you very much. Thanks a lot. ये थी मेधा जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।